Hello friends, a very good morning and a warm welcome to everyone. Here myself Pruthvi Maurya, and let's have a today's discussion regarding NTPC stock. And the name given to this topic is all about psychological analysis of NTPC Limited. Friends, as you know that in each and every video I generally provide a unique name to each and every analysis, and each and every analysis is related to that particular name or that particular topic, and I'm trying to relate each and every analysis with its characteristics and with its temperament, or I can say its sentiments across its markets. So friends, this particular stock is all about the psychological analysis of NTPC Limited, and this particular is particularly run upon the psychological sentiments across the market, right? What are the psychological sentiments, what are the factors which are leading this particular stock going down, and what are the factors which will make this particular stock as a multi-bagger in the future, right? So without wasting a single time, let's have a discussion regarding this particular stock. So friends, let's have a look over the index. I can say you can generally see upon the screen what type of control that I'm doing upon my laptop, right? Okay, so let's have a look over the index part. Okay, so you can see the index upon the screen. So what the topics I'm going to discuss is particularly divided into 9 topics. That is the question to be bear in the mind. Second is approach of market towards the stocks. Third is all about the business model. Fourth is all about the stock price history. Fifth is all about the valuation part. Sixth is all about peers comparison. Seventh is all about diversification and key USPs. And eighth is all about the risk factors which are involved in this particular stock. And 9th point is all about the conclusion part, right? So let's have a look over the first part. That is a question to be bear in the mind. फ्रेंड्स, मैं हमारे जो भी स्टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, तो मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैं हम आप सबको पूछता हूँ और आप लोग को सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि कोई भी स्टॉक का पॉइंट होता है, उसका एक पर्पस होता है. कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उसका एक पर्पस होता है. जिस इंडस्ट्री में वो अपना कंपनी सेटअप करती है तो उसका भी पर्टिकुलर मोटिव होता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर की फ्रेंड्स, तो पावर सेक्टर का फ्यूचर आपको क्या दिखता है आपके पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स, राइट? बिकॉज फूड, clothes, all that are the particular sector. In foods, consumer durables and the consumer business are there, like or I can say FMCG business are there, which will gradually grow year on year. Second is all about the textile business, that will also grow year on year. Automobile business depends upon the economy, right? But this particular sector, in which whether it is recession, whether it is an inflation, the demand of this particular sector will grow gradually as parallel with the population of the country. So I can say this particular industry is not wholly dependent upon the economy, and there is a least effect upon the I can say least effect of the economy on this particular industry, friends. But there is a significant changes and many other issues are there which are related to this particular industry that I will discuss in a later part, right? So I can say this particular industry is not going to, I can say, collapse after a recent 1 to 2 years, or I can 5 to 10 years, or I can say 50 to 100 years. This particular industry will continue forever. So this is a question to be bear in the mind. Okay, second part is all about the approach of market towards this particular stock. फ्रेंड्स, मैंने बात की साइकोलॉजिकल के बारे में. ये पर्टिकुलर एनालिसिस का मैंने नाम दिया है साइकोलॉजिकल एनालिसिस. पर कौन से सेंटिमेंट्स है जो ये पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत डाउन ग्रेड बता रहे हैं इन द पर्टिकुलर सिनेरियो. फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट? और थर्मल का जब नाम आता है तो एक नाम समझ में आता है कि थर्मल पावर का कंपनी है, राइट? कोल से जो काम है वो कोल से करते होंगे, राइट? कोल का जो रिजर्व है आने वाले समय में कम हो जाएगा, राइट? और कोल का रिजर्व कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कंपनी आने वाले सालों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और कंपनी आने वाले सालों में कोलैप्स हो जाएगी. ये एक पर्टिकुलर सेंटीमेंट है मार्केट में इन एवरी माइंड, आई कैन से इन द माइंड्स ऑफ एवरी इन्वेस्टर, राइट? सेकंड इज ऑल अबाउट पीएसयू कंपनी, लॉस एंड डेट रिडक्शन कंपनी. फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कोई पीएसयू कंपनीज हो, ओके, मैंने लास्ट में एनालिसिस किया था अबाउट सेक्टरल एनालिसिस ऑफ पीएसयू इंडेक्स which are given, I can say, which are given 30% return in upcoming times, or also will provide, I can say, multi-bagger return in the upcoming time, friends. Because मार्केट में सेंटीमेंट्स बन गए थे जो पिछले 4-5 सालों में कि पीएसयू कंपनी डेट रिटर्न कंपनी होती है और लॉस मेकिंग कंपनी होती है. अब बेसिकली कोई भी उस पीएसयू कंपनीज के बिजनेस और परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं करता है फ्रेंड्स इन डेप्थ, राइट? तो वो एक मेजर फैक्टर था जो किसी ने भी अभी सोचा नहीं था, राइट? क्योंकि जो कोरोना के बाद जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म इंडेक्स हुआ है वो है पीएसयू इंडेक्स, फ्रेंड्स, राइट?
सो ये उसी इंडेक्स में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो मेजर रोल प्ले करने वाला है इन द पावर सेक्टर इन द एंटायर कंट्री, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड फ्रेंड्स, राइट। तो पीएसयू कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी, इसके साथ आप सोचते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है, पर इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको आकर डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। थर्ड इज ऑल अबाउट द कार्बन एमिशन एंड नो फ्यूचर ग्रोथ। फ्रेंड्स, हम जनरली 2-5 सालों से एक बात जनरली सुन रहे हैं सब जगह कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी की बहुत डिमांड होने वाली है, हाइड्रोजन गैस की डिमांड होने वाली है, और जो कोल है, पेट्रोल एंड डीजल, that are going to be collapsed after 5 to 10 years, and the future of that particular sector will go down and down in the upcoming years friends. But हम ये समझते नहीं है कि जो कोल है कि उसका प्रोडक्शन अभी अचानक से 5 सालों में कम नहीं हो जाएगा। हमारे पास कितने रिजर्व्स पड़े हैं, अब किसी नॉर्मल इन्वेस्टर के माइंड में वो पता ही नहीं होता है कि हमारे पास एक्चुअल में कितने कोल रिजर्व्स है और आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ कोल सेक्टर, क्योंकि कोल इंडिया का जो शेयर है फ्रेंड्स वो काफ़ी 250 रुपीज़ से लेकर 100 रुपये पे आ गया था, और हमको लग रहा था कि अब कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, कोल का कुछ भी फ्यूचर ही नहीं है, राइट। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपके दिमाग में घुस गया था जो काफ़ी रॉन्ग है, राइट, एट द करंट पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स। तो ये जो 3 फैक्टर है कि कोल कंपनी है, राइट, थर्मल पावर कंपनी है, रिन्यूएबल कंपनी नहीं है लाइक अदानी ग्रीन, सो ये कंपनी का फ्यूचर अभी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा, राइट। दूसरा पीएसयू कंपनी, उसके हिसाब से ये मेजर सेंटीमेंट है, डाउन सेंटीमेंट है टुवर्ड्स स्टॉक्स। और थर्ड इज ऑल अबाउट द कार्बन एमिशन फ्रेंड्स। कंपनी की कभी भी फ्यूचर में कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टॉप द थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आई कैन से CO2, राइट। तो ये टाइप का साइकोलॉजिकल फैक्टर है इन द माइंड्स ऑफ एवरी स्मॉल इन्वेस्टर और द लार्ज इन्वेस्टर फ्रेंड्स, ड्यू टू विच दिस पर्टिकुलर स्टॉक is downgraded in the market at the I can say fair value, right? So this was all about the sentiments towards this particular stock. Okay, so let's have a look over the business model. What is the business model of this particular company? So friends, the company is involved in electricity generation, coal mining, and as well as electricity distribution फ्रेंड्स। हमने अभी तो सुना था कि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और भी बहुत सारे बिजनेस है जो आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर एक कोल माइनिंग का लफड़ा क्या है, क्योंकि कंपनी का काम तो कोल लेना नहीं है, कोल माइनिंग का काम तो नहीं है, ये अचानक से कब हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी को 10 ब्लॉक्स ऑफ कोल माइंस एलोकेट किए थे, राइट, which is having a 7.5 billion reserve of coal, 7.5 million tons, sorry friends, 7.5 billion tons of coal reserve is there with the NTPC limited currently, and in which companies utilizing 113 million, not billion, 113 million tons per year. So with that perspective, I can say companies having 50 years of coal reserve with the company right now, right. So I can say the perspective of the coal reserve is in the favor of the company, right, because the government has already allocated 7.5 billion tons of coal reserve to this particular company. So company is not having any insecurity about the coal mines. Okay, company is having a 22% market share in the entire power sector, right, because I can say this is a leading company because there are almost 15 companies in the power sector, in which this is the first company, I can say top 1 company in the power sector, not from the valuation perspective but from the sales and the profit perspective, right. You can compare, I will show you in the PS comparison part. Okay, so company is presently having an installed capacity of 62,000 megawatt, and currently companies is in the progress of constructing a 15,000 megawatt another I can say thermal power plants, or I can say hydropower plants, renewable plants, or wind energy plants. So companies operating in all the sectors. So 15,000 megawatts is under construction and 40,000 megawatt is under the government approval, friends, which is not decided by the government, which is in the I can say it is in the signatory of the government approval, friends. So this was all about the business model and the current capacity of this particular company. Okay friends, this is the main point for all of you, that is all about the stock price history. So you can see the comparison of NTPC, Sensex and BSE power, friends. So if you see the chart of last 10 years, so you can see the BSE Sensex has performed almost around 700% return, and if I talk about the power sector, so they have almost provided 100% return, and NTPC has provided almost around 40% return. So I can say this is not a very good sign for the power sector. There are major issues related to this particular sector which I will discuss later, but I guess the performance is not a little bit suitable for the power sector because the company is growing at the good rate, right. Company's financial that I will discuss later is also performing well, but the prices
is not moving as compared to the market. So I can say the beta of the company is also low, right? So I want to show a sales growth percentage that you can see in the PPT, and the downside if you can see 10 years growth at sales annual growth is 9%, 5 years annual growth is 6%, 3 years annual growth is 10%. If I just compound annually, when the share prices in 2010 was 170, if I compound with that at the point of time 170, so if I on an average, if 9% annual growth is there, so price of the company currently should be traded at 402 rupees, that you can see upon the side on the slide also. So 402 rupees should be the actual price of this particular company. Friends, I want to say that this is not the actual basis of the comparison to analyze, or I can say to take out the fair value of the company. There is a discounted cash flow method that is not possible to show you upon the screen, because many of you might not be understand about discounted cash flow method. ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%. फ्रेंड्स, जनरली मार्केट में एक बात होती है, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक एनालाइज करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं भैया आप तो बोल देते हो कि हाँ सेल्स ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है, कंपनी फटाफट ग्रोथ कर रही है, नेट प्रॉफिट कमा रही है, ईपीएस अच्छा है, पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं है. इसके वजह से कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी कम रहता है फ्रेंड्स. पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 10% है, और आई कैन से इट इज़ अ वेरी गुड, right? Because companies is operating at a huge size. The bigger the company, the financial will be little bit weak, not that much strong. The more smaller the company is, the higher the financial strength will be there, right? Okay, so this is the all about the financial of the company. So let's have a look over the valuation part, friends. So if I talk about the PE ratio of this particular company, so it is almost around 8.81. The sectoral PE is almost around 18.96. PB of the company is 0.83, whereas the sector PB is almost around 2.12. Dividend yield of the particular stock is 3.04, and the sectoral dividend is almost around 3.08. So if I talk about the dividend analysis, friends, so dividend is provided by the company's optimum with the sectoral, right? Second is all about the PE. The price earning ratio is very low, and it is remained low for the upcoming last to 10 years, right? But what the special is there? What are the special initiative is there in this particular company? Because last 10 साल में कंपनी के भाव नहीं बढ़े, तो अभी क्या स्पेशल है, मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा, ज़रा वेट करिए फ्रेंड्स. ओके, सो फ्रॉम द बोथ पी एंड पी परस्पेक्टिव द शेयर लुक्स अंडर वैल्यू राइट नाउ, राइट? और अंडर वैल्यू लास्ट 10 सालों से फ्रेंड्स, और लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ आप तो पैसे डालेंगे तो ग्रो कर ही जाएगी, पर वो ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स. पर अब क्या स्पेशल है आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो पीएस की बात करते हैं फ्रेंड्स. तो पीएस हम देख सकते हैं अदानी ग्रीन है, जिसका पी तो कुछ अलग ही दुनिया में है, समझ में नहीं आ रहा है. ओके, पावर की कॉर्पोरेशन है, वेरी वेरी गुड कंपनी आई कैन से. अदानी ट्रांसमिशन, जिसका पी भी कुछ अलग ही दुनिया में जा रहा है. टाटा पावर, राइट, आई कैन से इट इज़ एन इमर्जिंग कंपनी एंड द वैल्यूएशन इज लुकिंग वेरी not that much bright but suitable for up to now. NTPC Limited, my favorite stock, which is quite cheap as compared to the NTPC Limited. Adani Power, no P, right? Because the company's financial is very not that much sound as compared to the various other companies, friends. So this was all about the PS analysis. If I talk about the return on capital employed, because if you see the return on capital employed of Adani Green, so friends, return on capital employed is almost around 8.23%. Because मैंने एक जगह को पूछा कि अदानी ग्रीन में क्या है भाई इतना खास कि डेली 5% अपर सर्किट लगाता है, तो बोलता है भैया कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है. तो मैंने बोला कि अभी जो कंपनी जितना प्लान करे ग्रोथ करने का, उसका आधा भी नहीं है. मीन्स एनटीपीसी का जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसका 50% भी कंपनी प्लान नहीं करी आने वाले फ्यूचर में. तो फ्रेंड्स, अभी ये जो अदानी ग्रीन है, जो भी है, अदानी पावर है, और आई कैन से अदानी ट्रांसमिशन इज वेरी इज इन द कंफर्टेबल मोड. पर अदानी ग्रीन की बात करें फ्रेंड्स, तो लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बुलिश है, जो आने वाले समय में वो अपना रंग दिखाई देगा फ्रेंड्स, राइट? ये मेरा आपसे प्रॉमिस है फ्रेंड्स. ओके, तो कभी भी अदानी ग्रीन से स्टॉक पे नहीं पड़ना, मैं आपको अभी भी सजेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएस एनालिसिस. बिकॉज आप जनरली देखोगे तो नोटिस करोगे जितने भी पीएसयू कंपनीज है पावर सेक्टर में, सबके डिविडेंड ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, और जो पीई वैल्यूएशन वो भी काफ़ी कम रहेंगे. तो और अगर सेल्स की बात करें फ्रेंड्स, एनटीपीसी का जो सेल्स है वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, 27,000 करोड़ इन द दिसंबर 20 क्वार्टर. और उसके बाद सेकंड कंपनी जो आती है वो पावर की कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट द पीएस कंपैरिजन. इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं इतना बुलिश क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर बनाता हूँ जहाँ पे स्विंग ट्रेड होता है फ्रेंड्स,
राइट। और जितने भी स्टॉक्स हैं, वेदर इट इज एनसीसी लिमिटेड, वेदर इट इज मैग्मा फिनकॉर्प, वेदर इट इज गेल कॉर्पोरेशन, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज सेल, वेदर इट इज एक्साइड लिमिटेड, any of the stocks, because I've almost prepared almost 20 stocks videos until now. So ये स्टॉक में भी अपस्विंग ट्रेंड होने वाला है, इसके मैं आपको पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक डायरेक्टली जंप अपॉन द टॉपिक। सपने की दुनिया में नहीं आता है कि प्राइस बढ़ेगा, वो सपने की दुनिया में छोड़ते हम कंपनी को एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स, राइट। चलो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी ने अभी TSDC लिमिटेड, राइट, गवर्नमेंट की एक PSU कंपनीज है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है, डाइवर्समेंट किया है, तो जिसे कोई प्राइवेट प्लेयर ने नहीं खरीदा है, बल्कि NTPC ने उसका एंटायर 100% स्टेक बाय किया है TSDC लिमिटेड का। तो इसका भी इंस्टॉल कैपेसिटी 3,200 करोड़, सॉरी 3,200 मेगावाट capacity, and which is and almost around 3,000 megawatt capacity is under construction. So because I can say the company has diversified its portfolio in the thermal power sector. Okay, second most important friends, it is all about the e-mobility enabler friends. So friends, the company government of India ने MOU किया है with the NTPC limited to set up a 250 charging station across India and the highways, okay, to create a charging infrastructure across the country, right. This will be a little bit a pilot project for company also, okay. And second, the company is offering a e-bus solution. I can say recently 2 days ago only one news have came into the market about the company is going to establish a hydrogen bus to travel from Delhi to Jaipur, right. First hydrogen bus in India. It is not established until up to now by any of the company, right. So this will be a good game changer for this particular company. Second, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो सेक्टर है फ्रेंड्स, जिसके बारे में मुकेश अंबानी बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन सेक्टर में जाना चाहते हैं, ऑयल का जो बिजनेस हम थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं टू द हाइड्रोजन बिजनेस फ्रेंड्स। तो ये हाइड्रोजन का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी NTPC भी एंटर करने का प्लान कर रही है, वो भी एट द ग्रेट लेवल, राइट। सो ये एक मेजर आई कैन से अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर द NTPC लिमिटेड फ्रेंड्स। सेकंड, वेस्ट टू एनर्जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है फ्रेंड्स, आप डीप में एनालाइज कर सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंपनी डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स। इंटरनेशनल बिजनेस में भी गवर्नमेंट बिजनेस में भी कंपनी है फ्रेंड्स, तो आप ये अपने आराम से पढ़ सकते हो, कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, पर आपको मैं ओवरव्यू खड़े बता देता हूँ फटाफट फ्रेंड्स, राइट। ओके, आई कैन से की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक नया टॉपिक है जो मैंने अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया है। क्योंकि कोई कंपनी है फ्रेंड्स, अगर पावर सेक्टर में 10 कंपनीज है फ्रेंड्स, तो इस कंपनी में इतना क्या खास है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, तो इस कंपनी में इतने क्या खास बात है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। First of all, it is a leading market player in the company in India, and it is planning. The company is also planning to go across the globe, right? ग्लोब में मीन्स इंटरनेशनली भी कंपनी का प्लान है कि वो अपना पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करे। जो कंपनी ऑलरेडी बांग्लादेश में भी अपना प्लांट सेटअप कर रही है, थर्मल पावर प्लांट। श्रीलंका से भी टाई अप है, म्यांमार से भी टाई अप है टू सप्लाई अ power I can say power to the country, right? Okay, second is all about the 7.3 billion tons of coal blocks allocated to the company, which approx will last for almost around 50 years, right? Because company हर साल 113 million tons of coal occupy करती है for the production purposes, I guess for the production of power, right? So कंपनी के पास अच्छा खासा कोल रिजर्व है, जिसके कारण कंपनी के पास एक स्ट्रेंथ है कि उनका जो रिजर्व है फ्यूल, जो कंपनी को चला रहा है फ्यूल, कोल मीन्स कंपनी का जो फ्यूल है कोल, वो हमेशा चलेगा आने वाले 50 सालों तक, और वो अभी एक मेजर रिस्क कंसर्न में अभी आता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, थर्ड इज ऑल अबाउट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूसिंग CO2 लेवल फ्रेंड्स। मैंने आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस साइको जो बताए थे कंपनी मार्केट का सेंटीमेंट्स है कि कंपनी का जो थर्मल पावर सेक्टर में है तो CO2 का एमिशंस बढ़ता है, तो गवर्नमेंट का कुछ प्लान फ्यूचर में आ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेशनल बिजनेस है वो काफ़ी खतरे में पड़ सकता है, अगर क्योंकि CO2 एमिशन सबसे ज़्यादा होता है इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो कंपनी ने अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की है ईयर ऑन ईयर, और इस बार कंपनी ने USC पायलट प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया है, एडवांस USC पायलट प्रोजेक्ट, इन विच कंपनी इज प्लानिंग। बिकॉज अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो BS6 इंजिन, BS4 इंजिन जो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देखा है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। इस टाइप की टेक्नोलॉजीज कंपनी ईयर ऑन ईयर डेवलप करती है, सो दैट कार्बन एमिशन जो थर्मल पावर से जो भी धुआं निकलता है कार्बन का, उसको वो कम से कम कर सके, राइट। तो ये मेजर अलग अलग कंपनी कैसे
इनिशिएटिव्स ले रही है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस एंड टू रिड्यूस द कार्बन साइकिल अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो कंपनी का जो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल चार्ट जो मैंने अपने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से लिया है, बिकॉज एवरी 1% एफिशिएंसी रिलेट्स टू द 2.5 रिडक्शन इन द CO2 लेवल फ्रेंड्स। ओके, कंपनी अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर, जो एक मेजर स्ट्रेंथ हो सकता है आने वाले समय में। ओके, इस फैक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक जो भी बात की फ्रेंड्स सब अच्छा बात किया कि कंपनी ये करती है, अपनी वो करती है, पर रिस्क भी होती है। ओके, और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हर कंपनी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस कंपनी में भी कुछ बुरा है जो हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन सोलर सेक्टर फ्रेंड्स अगर बात करें तो अभी 2-3 सालों में एक सोलर पैनल्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, राइट। लोग जो भी especially in the urban cities, most of the people are depending upon the individual solar panels। घर पे पैनल्स लगवा देते हैं, इसके वजह से जो भी पावर खरीदते थे, जो भी पावर बिल्स आते थे कंपनी की तरफ से, वो अब रिवर्स आते हैं, क्योंकि हम पर्सनली यूटिलाइज करते हैं और जो भी एनर्जी आता है वो हम कंपनी को भी सेंड करते हैं, जिसके वजह से ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है कि आने वाले समय में अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे सोलर पावर पैनल, तो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे वो काफ़ी कम हो जाएगा आने वाले समय में। हाँ, द पॉइंट इज दैट द सोलर इज कैपिटल इंटेंसिव बट रिस्क फैक्टर विल बी देयर फॉर द अपकमिंग टाइम्स, राइट। सो एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर ऑल ऑफ अस। सो और दूसरा है हाई डेट फ्रेंड्स। कंपनी का जो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो फ्रेंड्स, so it is almost around 1.60, okay, which is almost currently near about 1.34 in the March 2020, okay। so ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि कंपनी का डेट लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। पर मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पावर सेक्टर है तो अच्छा खासा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, और कंपनी को अच्छे खासे अमाउंट चाहिए होते हैं, और कंपनी बार बार कभी भी मार्केट से पैसे उठा नहीं सकती है, तो कंपनी को कुछ भी करके डेट लेना ही पड़ता है। तो मेजर पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कंपनी जो भी डेट्स लेती है वो पे कर सकेगी, क्योंकि पावर कंपनीज के पास इतना अच्छा कैश फ्लो होता है, इतना अच्छा लिक्विडिटी होता है कि उनको कभी भी टेंशन नहीं कि वो कभी भी कैसे लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा बेस है, अच्छा खासा मोनोपोली है सेक्टर में, जिसकी वजह से कंपनी कभी भी डरती नहीं है डेट लेने से। ओके, थर्ड इज ऑल अबाउट द PPA एग्रीमेंट, परचेज पावर एग्रीमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, PPA एग्रीमेंट्स होता क्या है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। PPA एग्रीमेंट्स में जनरली ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट पावर कंपनी के साथ एक टाई अप करती है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर 1 या 2 रुपये उस स्टेट पे आप आने वाले 5 साल 10 सालों तक सप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर कोई भी कंपनी आए, सपोज मोदी गवर्नमेंट है और सपोज आने वाले समय में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है या तो कोई भी दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो बोलेंगे कि हम मिस पब्लिक से ऐसा वोट मांगा कि हम लोग आने वाले समय में आके जो 2 रुपये का पावर आपको पर यूनिट देना पड़ता है वो आने वाले समय में 0.50 देना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला कि आपको इतने समय में देना ही पड़ेगा, इतने कैपेसिटी में देना पड़ेगा, इतने रेट पे आपको पावर सप्लाई करना पड़ेगा, तो कंपनी को करना ही पड़ेगा, राइट। और जो भी एग्रीमेंट्स हो गए, क्योंकि तो इन शॉर्ट मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि कंपनी हाईली इज डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक मेजर इशू है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द कंटीजेंट लायबिलिटी फ्रेंड्स। कंपनी के पास जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है वो 1 लाख करोड़ का है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो कंटीजेंट लायबिलिटी काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट आई कैन से कंपनी विल ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंटीजेंट लायबिलिटी एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो फ्रेंड्स। ओके, तो कंक्लूजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो भी 6 to 7 पॉइंट्स जो मुझे लगे ये कंपनी के लिए आप कर सकते हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक अप टू नाउ। सेकंड इज ऑल अबाउट द हाई डिविडेंड yield. Company is providing almost around 3 to 4 rupees every year as a part of the dividend. Third, swing trade opportunity with a target of 140 rupees in the span of 6 to 12 months. Okay. Fourth is all about the positional investment, 50:50. इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, बल्क में करना है कि SIPs में करना है फ्रेंड्स। तो मेरा प्लान है कि आप SIPs में इन्वेस्टमेंट करिए 50:50। प्राइस रेंज क्या होगा, 50% जो इन्वेस्टमेंट आपका अभी जो आज का रेट चल रहा है 106 रुपीज़ चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप 101 से लेकर 104 के बीच में अपने 50% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए। इट मीन्स अगर आप प्लान करते हैं कि आप NTPC में 10,000 रुपये डालेंगे तो 101 से लेकर 104 के बीच में आप 5,000 रुपये डाल दीजिए, राइट। और उसके बाद कभी भी मार्केट डाउन आता है तो 90 से लेकर 97 के रेंज में आप
नेक्स्ट 50,000 आई कैन 5,000 आप डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के, और फिर आप लॉक कर दीजिए 6 महीने तक हम कुछ भी नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, राइट। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप जो भी लेवल्स देता हूँ वो एक्चुअली फॉर शॉर्ट टर्म में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म आप 3 to 4 मंथ और आई कैन से मैक्सिमम 6 मंथ्स वो आपको आपका रिजल्ट दिखाई देंगे, राइट। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट इट इज ओनली फॉर द पेशेंट इन्वेस्टर्स, इट इज नॉट फॉर द दैट ऑफ इन्वेस्टर्स कि आज बाय किया और आज ही स्टॉक में 10% की अपर सर्किट लग जाए और 20% की अपर सर्किट लग जाए फ्रेंड्स, इस टाइप का ये स्टॉक नहीं फ्रेंड्स। पेशेंस रखना पड़ेगा और ग्रेजुअली रिकवर करेगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो मार्केट जो मार्च में क्रैश हुआ था फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो प्राइस है वो 105 110 से लेके 88-85 तक गया था फ्रेंड्स, और कंपनी के स्टॉक में मेजर करेक्शन नहीं आया था। क्यों? क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी और कंपनी का जो बिटा है वो काफ़ी कम था, तो आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मिल गया फॉर द इन द बुल रन। सो आप आराम से लेकर रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक होगा, जैसे मैंने गेल में आपको बताया था फ्रेंड्स। ओके, होल्डिंग पीरियड बता दिया 6 to 12 months एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक ऑफ NTPC लिमिटेड एंड आई कैन गिव 4 out of 5 star to this particular stock and I can say subscribe for the long term for the 6 month to 12 month only. If you are not having a plan to invest for the minimum of 6 months, so better to keep yourself from away from this particular stock. Okay, thank you.